English Medium School of 8th standard. Myself, Mr. Vishwajit Rangnekar sir, and today I am going to teach you a new poem, poem number 1. The very first poem and the name of the poem is A Time to Believe. A Time to Believe. Okay. So let us see some difficult words. Difficult words. STARDUST stardust का मतलब है having a magical quality. हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी. स्टारडस्ट स्काई के लिए शब्द है. नर्चरिंग. नर्चरिंग मीन्स केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग. इन मराठी नर्चर को कहते हैं पालन पोषण करने. केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग. एजिंग. एज का मतलब है वय. मराठी में एजिंग मीन्स ग्रोइंग. ये देखो ग्रोइंग ओल्ड. ग्रोइंग ओल्ड. चेरिश. CHERIS. चेरिश का मतलब है टू लव विथ केयर. टू लव. नॉट ओनली टू लव बट ऑल्सो टू लव विथ केयर. एंड ये लास्ट वर्ड है विदिन. विदिन अ रिच. विदिन अ रिच. यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग अ. विदिन अ रिच का मतलब है पॉसिबल टू अचीव. विदिन अ रिच का मतलब है पॉसिबल टू अचीव or which can be achieved easily. Okay, so let us see, let us start the poem. I am going to read this poem, and this poem is also a didactic poem. उपदेश पर कविता है ही. तुम्हारा it is very helpful and useful for you, for your life. Okay, this poem will be very useful for you, for your life. I am going to read the poem. Listen it very carefully, my dear students. To believe is to know that every day is a new beginning. To believe is to know that every day is a new beginning. Is to trust that miracles happen and dreams really come true. देखो मिरेकल. अब मिरेकल का मतलब क्या है? MIRA. मिरेकल्स. ओके, इसका मतलब है चमत्कार. Miracles happen and the dreams really do come true. I am again reading this poem. To believe is to know that. I am telling you in a simple way. We should believe that. We should believe that every day is a new beginning. आपण असा विश्वास ठेवायचा. आपण असं समजायचं आहे की प्रत्येक येणारा नवीन दिवस, प्रत्येक येणारी नवीन सकाळ ही एक नवीन सुरुवात आहे. इट्स अ न्यू बिगिनिंग. इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड वी शुड बिलीव दैट. देखो अब देखो इट्स अ मॉर्निंग. ओके, सपोज इट्स अ मॉर्निंग, then we should think that okay, it's a new beginning and today the miracles will happen. कुछ अच्छा होगा, कुछ चमत्कार होगा आज मेरे बारे में. and my dreams will really come true. मेरे जो कुछ सपने हैं वो सपने साकार हो जाएंगे. ऐसा हमें मानना है, ऐसा हमें समझना है. इस बात पर हमें विश्वास रखना है. it means that we want to be positive. We want to be optimistic. Okay, that is why I have said to you in the beginning of this poem that this is a didactic poem. ये poem जो है वो उपदेश पर poem है. Means again I am reading. We should suppose that every day is a new beginning. Miracles will happen and my dreams will really come true. Second stanza. To believe is to see angels. To believe is to see angels. Angels means angels को हम देवदूत कहते हैं. देवदूत. And angels are good for human beings. Angels are good women. Angels के opposite word कौन सा है? Monsters, giants, राक्षस. राक्षस जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते. लेकिन जो देवदूत होते हैं, हम मराठी में कहते हैं देखो अगदी देवदूतासारखा आलास, देवासारखा आलास. देव या देवदूत in means they bring something good for us. The angels bring something good for us. Dancing among the clouds. Clouds, you know clouds are available in the sky. To
टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई। स्काई जो है वो स्काई कैसा है, स्टार डस्ट। स्टार डस्ट का मतलब क्या है, हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। देखो, आई एम रीडिंग द स्टैंजा वंस अगेन। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स। अब हमें पॉजिटिव माइंड से क्या देखना है, वी शुड बी पॉजिटिव एंड व्हाट शुड वी सी, वी शुड सी द एंजल्स आर डांसिंग इन द स्काई। Dancing in the sky, they are dancing in the clouds, means something will happen good for us, हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। To know the wonder of a stardust sky, और हमें क्या करना है, ये जो स्काई है वो स्काई कैसा है, इट हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। इसमें समथिंग जो कुछ है वो कैसा है, जादूमय है, इसमें जादू है और मेरे लिए कुछ गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। विजडम का मतलब है होशियारी। देखो, एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून मीन्स जो आदमी है, he has also reached on the moon. The man is also reached on the moon because of his wisdom. Okay. Third stanza देखो, I am turning to the third stanza. To believe is to know the value of nurturing heart. देखो, to believe is to know the value of a nurturing heart. अब देखो, in our home, what are the nurturing hearts? Our parents are nurturing hearts, our grandparents are nurturing heart. If you have big brother, if you have big sister, she can be also or he can be a nurturing heart. Okay, so जो लोग हमारे लिए केयर करते हैं, जो लोग हमारे लिए प्रोटेक्शन करते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनकी हम वैल्यू करेंगे, उनका हम रिस्पेक्ट करेंगे। वी शुड नो, वी शुड बिलीव, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमारे लिए केयर करते हैं, हमको लव करते हैं, द पीपल हु लव अस, द पीपल हु केयर अस, दे प्रोटेक्ट अस, देन वी शुड ट्राई टू नो देम, वी शुड वैल्यू देम। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 1 year old or 2 year old, 3 years old, or especially 6 months old. If you look at a baby which is 6 months old, तो yes, देखो, the innocence of child's eyes. If you look at the child's eyes, if you peep into the child's eyes, you will look the child so innocent. हम जब नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ देखते हैं तो उनका जो एक भोलापन है वो हमें दिख जाता है, और एज वी ग्रो ओल्ड देन वी बिकम सेल्फिश। देखो, एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड। ऑल्सो हमारे घर में जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, मे बी आवर ग्रैंडपा, मे बी आवर ग्रैनी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो दे हैव बिकम ओल्ड, दैट इज व्हाई वी शुड नेग्लेक्ट हर। नो, नॉट एट ऑल। दो दे आर grown old, they do have aging hand, though they are old, we should care for them, we should love them. Why? Because in the past they have cared us, in the past they have pampered us. जो पास्ट में, जब भूतकाल में उन्होंने हमारी जो सहायता की होती है, जो वो हमें प्यार करते हैं, जो हमें केयर करते हैं, वो है वो हमारी, तो उनके लिए हमें उनका ध्यान देना चाहिए। ओके, फॉर इट इज दो देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव। और जो हम उनसे सीखते हैं, वी लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम। जनरली वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी लर्न फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम आवर बिग ब्रदर, फ्रॉम आवर बिग सिस्टर और फ्रॉम आवर एल्डर्स। ओके, सो हमें वो ध्यान में रखना चाहिए और वैसे ही हमें जीवन बिताना चाहिए। जीवन में हमें वैसे ही उनकी सीख लेनी चाहिए। ओके, लर्न टू लव। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ।
देखो ये जो स्टैंजा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ, द करेज दैट लाइज विद इन अस when it is time to pick up the pieces and begin again. When it is time to pick up the pieces and begin again. Means what? Generally, you know, my dear children, so many persons do not get their selves. जो लोग होते हैं ना, वो लोग खुद को नहीं जान जाते, खुद में कितनी स्ट्रेंथ है, खुद में कितनी पावर है, वो क्या कर सकते हैं, वो नहीं सोच सकते, उन्हें नहीं पता होता है कि what are the abilities in their self। तो यहाँ पे